الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. اوکے آئی ایم بیک. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ویلکم بیک سر. جزاک We اللہ. missed you. شکریہ، بہت شکریہ. حافظ صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ارے حافظ صاحب بہت قابل ہے. آسم آسم آسم. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر. تو خیر ہم جو ہے انا ہم پڑھ رہے تھے، وہاں سے شروع کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے جو بھی بیچ میں سیکھے وہ تمام چیزیں آپ کے میں تھوڑا سا ریوائز کر لیتا ہوں. دیکھیے جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے اور رفع، خبر بھی رفع لیکن نکیر ہو. اتنے فرق کیا. پھر ہم نے سیکھے تھے کہ جملہ اسمیہ میں اگر ہمیں تخصیص پیدا کرنا ہے، امپیکٹ پیدا کرنا ہے، زور پیدا کرنا ہے، تو ہم نے متعلق خبر یاد ہوگا، متعلق خبر کو اپنے آگے لیے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے؟ خبر مقدم. ٹھیک ہے نا؟ تو خبر مقدم کر کے ہم نے اس کے اندر ایک زور پیدا کرے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ پورا بہت باریکی سے پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں انا اور اخواتھا. انا ایک ہے اور اس کی 5 بہنیں، لیکن سب کے سب انا کے حکم پہ چلتے ہیں. انا یہ گروپ لیڈر ہے، لیکن قرآن میں انا کا استعمال سب سے زیادہ ہوا ہے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ نام ہے حرف مشبہ بالفعل، اور فنکشنل نام ہے ان کا حرف توکید و نصب. ایسا حرف جو عامل ہے وہ نصب دیتا ہے اپنے مبتدا کے اسم پر اور اس کو تبدیل کر لیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اسم و انا. خبر کو یہ چھیتا نہیں، اس کو کہتے ہیں خبر انا. یہاں تک ٹھیک ہے؟ سب کو یاد ہے جی. تو انا جب بھی آئے جی گی سر. تو اپنے پڑوس کے اسم پر حملہ کرے گی اور اس کو رفع سے نصب ملے گی. ٹھیک ہے، اب زیادہ اس پہ ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں. اور انا کے جو بہنیں ہیں انا، انا، لا اللہ، لاکنہ، کا انا اور لائکا، میں یہ آپ سے توقع کرتا ہوں کہ یہ 6 کے 6 آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ارے ماشاء. تو انا کے ہم سب دیکھ چکے ہیں. اب زیادہ دیکھ انا لگائیں گے. الکتاب تھا تو کتابہ ہو گیا. ان الکتاب جدید، بے شک کتاب ہے نیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کو یاد ہے نا؟ پریکٹس بھی کرے تھے آپ نے، آڈیو بھی دیے تھے مجھے آپ نے. تو یہاں پہ میں سب کا تھوڑا تھوڑا ابھی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. انا جس طرح سے کام کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیے، ان الکتاب جدید. ٹھیک ہے، انا کو کیا بولیں گے؟ حرف توکید و نصب. اور یہ مبتدا جو تھا اسے کہیں گے اسم و انا، اور خبر کو کہلائیں گے خبر انا. اب دوسرا اسی کے معنی پھر سے میں تھوڑا تھوڑا لے رہا ہوں ان کو، انا پہ ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن یہ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے چلیں گے. کا انا، کا انا کا مطلب ہے گویا کہ، جیسا کہ جیسا. تو ہم بولے کا ان الکتاب جدید، سیم طریقے چل رہے تھے. انا نکالو، خالی کا انا لگاؤ، باقی فنکشن سیم ہے. اب بولیں گے یہاں پہ اسمو کا انا اور خبروں کا انا. ٹھیک ہے بیٹا؟ سب کو سمجھ میں آ رہا؟ جی. انگلش جو جاننا چاہتے ہیں، سملٹی اور جانے سملیرٹی، اس کے اندر کے جیسا. ٹھیک ہے، ابھی آپ زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ جاؤ، خالی پہلے دیکھو کہ اس کا فنکشن کیا ہے. اس کا فنکشن بھی بالکل انا کے مطابق میں ہی ہے. تو انا باس ہے تو انا کے حکم پہ انہوں بھی چلیں گے. بہن لیت الکتاب جدید،
लयता, if only. हाँ, ये तमन्ना करते हैं बाजी, जिसको मैं बताऊंगा। तमन्ना है कि हाँ, आई विश, अच्छा, काश के ऐसा होता। हाँ 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 अब समझो कोई फेल हो गया, इम्तिहान में कोई फेल हो गया, जी, फेल होने के बाद क्या, काश मैं पास हो जाता। हाँ हाँ हाँ, I wish, आई विश, आई hope, पास। hoping है। अभी कुछ पर देखो, उसको ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाऊं मैं, फिर उसकी मायनों के साथ सब चीज आपको लिखा के देता हूं। पहले हमारा कंसंट्रेशन इन ना पे है, लेकिन साथ ही साथ ये भीगने को डालना है। तो ऐसा है, इसका मतलब आई विश है माजे दिए, होप नहीं है। होप यहाँ है, अल्लाह किताबा जदीद, अच्छा 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 उम्मीद कर रहे हैं हम, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उम्मीद। अभी अगर आपको याद रखना है तो ये हर्फ को तशबीह, तशबीह का मतलब रूपक, हाँ, उसके जैसा, हो मेटाफॉर। इसको बोलेंगे, हाँ मेटाफर, इसको बोलेंगे हर्फ को तमन्नी, तमन्ना कर रहा, मैं तमन्ना कर रहा कि पास हो अच्छा जाता, अच्छा 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 अच्छा, हर्फ तमन्नी। हाँ तमन्नी, मैं पास हो जाता यार, क्या रह गया मेरा। जो ट्रेन छूट गई, बोलो, जो ट्रेन छूट गई या बस छूट गई, या बस छूट गई। आपको घर पे बड़ा अहम काम था, हम्म, तो आप बोलते काश यार मेरे को बस मिल जाती। बराबर। अब ये है ला अल्लाह का मतलब मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, इस तरह से किया जाता है। ला अल्लाह ताखिलून, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं आपसे, आई होप यू उम्मीद। विल बिहेव लाइक दिस, जिस पर ख्याल करोगे आप, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। हाँ, इसको बोलते हैं हर्फ को तरज्जी। हर्फ तरज्जी। हाँ। और ये एक बहुत कॉमनली ग्रीटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ला अल्लाह भी खैर या अखी, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, आई विश यू आर ऑलराइट, अच्छा, आई होप यू आर डूइंग वेल। फिलहाल इतना याद रखना है कि कान्ना भी इन्ना के जैसा चलता है, लैता भी इन्ना के जैसा चलता है, लाल्ला भी इन्ना के जैसा चलता है। अब इसके बाद में अपन बहुत सारी चीजें निकाल के देखेंगे। अब देखिए कान्ना का एक एग्जाम्पल देखिए माजिद साहब, जी, यहाँ क्या लिखा है, अशम्सु नारुन, शम्स बोले तो क्या जी, सूरज, सूरज। सूरज है आग। ये बराबर, अपना ओरिजिनल जुमला नारुन। है, ये अपना सादा नॉर्मल जुमला इस्मिया है, क्योंकि ये मुब्तदा है, ये खबर है। सही। लेकिन कान्ना इसके अंदर दाखिल करे, कान्ना ने अटैक करी मुब्तदा पे, शमसू से शमसा कर दी, हो, कान्ना शमसा नारुन, जैसे के गोया के जनु की, क्या है, जैसे के गोया के जनु का ही बोलते ना उर्दू में, जनु का हो, ही आतिश है, बराबर है, बराबर है। जनु का ही, जस्ट लाइक। जस्ट लाइक, ठीक है, एज इफ बोलते हो इंग्लिश। हो, तो अगर आपके पास लाइट बत्ती बंद हो जाती है, बिजली मुनक़ता हो जाती है, आपने इन्वर्टर पे लगाए, छोटा सा इन्वर्टर है, 4 बराबर। लाइट की जगह आपके पास एक ही लाइट चल रहा है, कितने चल रहा है, एक ही तो लाइट। बाहर वाला देख के बोलेगा एज इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सही है। या खंडिल लगाए तो क्या बोलेंगे, अरे ऐसा लगा जैसा कि वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, सही है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो। यस यस। अभी बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं मैं। अब देखो अल मय्यतु आईदुन, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैता ला रहे हैं, लैता यानी कि काश मुर्दा वापस आ जाता, सही। ठीक है, हो, यानी कि मुर्दे को ये पता लग गया है कि आखिरत पे डायरेक्ट जा रहा आग में हो, तो क्या बोल रहा, काश काश में वापस जाके नमाज पढ़ लेते। फिर से एक रिपीट रिप्ले मिल जाता, तो अल्लाह ताला बोलते हैं नो गॉड, बिल्कुल नहीं चलेगा, रिप्ले नहीं है यहाँ पे। सही। तुमको बहुत लोगों ने आके समझाए, पैगंबर भी आके समझाए, कुरान ने समझाया, लेकिन तुमने जिद किए, देयर इज नो रिप्ले हियर, तो लईता है मुझे। अब देखो यहाँ पे अल जारो नाइमुन, अल जारो मतलब पड़ोसी, पड़ोसी है नींद में, ये नॉर्मल जुमले इसमें है, ये मुब्तदा है, ये खबर है,
अब इसको लाल ला लगाओ। अब आप किसी के घर पे गए, अब आप किसी के घर पे गए, आपको मालूम है तो बोलो पड़ोसी निर्णय बन, लेकिन नहीं मालूम है, आपने खटका दी और उठ रहा नहीं, खर्रा टेलेने की आवाज आ रही, तो बोलो मैं उम्मीद करता कि वो नींद में है। सही आई होप ही इज अस्लीप। सही ओके बस। लाचार नाइन हाँ, अब हम आने लगे हैं एक नए काम की तरफ, एक हर्फ नया लेके आ रहे हैं जो कि जोर पैदा करता है। क्या पैदा करता है? जोर पैदा कर। इनका एक बूस्टर है, ये दूसरा बूस्टर लगा रहे हैं। अच्छा जी। अब हमारी गाड़ी की स्पीड थी 60 की, तो इंजेक्शन फ्यूल नया डाले तो 90 पे आ गए। फिर किसी ने कहा और एक फ्यूल मिलता है वो डालो, 120 पे चलती गाड़ी, वो दूसरा फ्यूल डाल रहे, जुमला इसमें हम सही बोले बोले क्या करें हमने, इनना से एक फ्यूल डाल के ताकत बढ़ाए। अब 60 की स्पीड की 90 की स्पीड चल रही, लेकिन अब और भी ताकत चाहिए, तो और एक बूस्टर लगा रहे, एक बूस्टर डोज और एक देने वाले, और वो है हर्फ। हर्फ क्या होते हैं भाई, आपको जानते हैं, हर्फ ऐसी चीज होती है जिसके खुद के बुनियादी मायने नहीं होते, सही उसको कोई एराब नहीं होता। जब वो किसी से जुड़ता है तो एक नया रिश्ता कायम कर देता है। जी। तो ये एक नया हर्फ आ रहा है। एक आमिल हर्फ होता है, एक आमिल नहीं होता है, गैर आमिल। ये हो गया, आपको बताया ना पहले। हो शाबाश। अब एक ऐसा हर्फ आने वाला है माजिद साहब, ये इन्ना पढ़े थे आप पहला बूस्टर। नहीं इन्ना ने अपने मुक्तदा को तब्दील कर कर नसब कर कर खुद का इस्म बना दिया है, इस्म इन्ना था। अब एक नई चीज आने वाली है माजिद साहब, वो है लाम ताकीद। बोलो लामे ताकीद, ताकीद। लामे ताकीद। लामे ताकीद लामे ताकीद। ये इन्ना ताकीद था। सही है। ताकीद मालूम ना, आपको बोलते हैं ना किसी हाँ, को, ताकीद। लामे ताकीद ना। ये जब मैं ताकीद कर रहा हूँ कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये ऐसा बताने के लिए ताकीद है ना, जोर देकर किसी को वो बात पर कायम करना। तो इन्ना से ताकीद पैदा करे थे, अब लाम से ताकीद पैदा करने वाले। तो लाम एक हर्फ है, बोलो। लाम एक हर्फ है। और लाम पे जबर आती है, क्या है? जबर है। और ये आप, मैंने हर्फ बोलते आपने पूछना सर ये आमिल है या गैर आमिल? ओ, ये गैर आमिल है। बोलो, सब लोग गैर बोलो, आमिल। इनाम। लाम ये गैर आमिल। लाम गैर जोर देता आमिल है, है। ताकीद करता है। लाम गैर आमिल आमिल है। ताकीद जरूर करता लेकिन अमल नहीं करता। किसी नहीं की करता। जो है इनाम बदलता नहीं, किसी का जबर को बदलता नहीं, पेश को बदलता नहीं, जैर को बदलता नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसा रहता। ये नॉन वेजिटेरियन है, समझा। समझे ना? राइट, इन्ना के उल्टा। हाँ, ये बेचारा है। अच्छा अच्छा, विचार। बेचारा कुछ भी नहीं करता, खाली एक तुम्हारा बुस्का करता। इन्ना में डालते जिन्ना बदल देती, इन्ना चेंज करते। इन्हें बेचारा कुछ नहीं करता, इन्हें बेचारा बहुत अच्छा है, न्यूट्रल काम करने वाला आदमी है, मदद भी करता, किसी को छेड़ता नहीं। जैसे को वैसा रहता। हाँ, तो इसलिए इन्ना का जो है ना ताकत बड़ी है, इन्ना का वजन ज्यादा है, इन्ना शेरनी है। अच्छा। ये जो है बट्ठा जरा ढीला है, नरम है, लफड़े नहीं करता। राइट। तो क्या करता, ताकीद तो करता है लेकिन तब्दीलियां नहीं करता। सही। इन्ना ताकीद करके क्या करती है, अपने इसम को नसब देती। भेजे में गया क्या आपको? यस। बहुत अच्छी तरह से समझो, ये बहुत आता है, इस्तेमाल बहुत होता है। इसका दूसरा नाम है माजिद साहब लामे इब्तिदाई। बोलो लामे इब्तदा। इब्तदा तो इब्तिदाही। शुरुआत। इब्तिदाही। इब्तदा बोले तो शुरुआत। हो। ऐसा लाम जो शुरू में आता है,
لام ابتدائی ایسا لام جو شروع میں آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن کوئی تبدیلی نہیں کرتا. لیکن کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے نہیں کرتا. غیر عامل ہے. خیر. اب میں یہاں پہ جو جملہ باریک میں لکھا ہے میں بڑا کر کے بولتا ہوں اس کو. لام نکال دیں گے اس کا. بیتو کا، بولو بیتو کا. بیتوکا. بیتو اسم ہے، بیتوکا. اسم ہے، اس کے گود میں کھا بیٹھی ہے. ہاؤ. اسم کے گود میں جب بھی ضمیر بیٹھتا ہے تو مضاف مضاف کے بن جاتا ہے. برابر. بیتو بولے تو گھر، تیرا گھر. آخف کیا ہوا ہے. کا بولے تو تیرا گھر. اب اس کے بعد میں آ رہا ہے اجملو، خوبصورت. تیرا گھر ہے خوبصورت. لیکن وہ سامنے والے کو مزہ نہیں آ رہا. اس نے تو اپیکشا کر رہا تھا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا، امید کر رہا تھا کہ آپ ذرا تعریف اچھی کریں گے بھائی. گھر بنانے والے کا گھر، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ تم نے اچھی بات ذرا تعریف کرنا چاہیے. تو اس کو بولے اچھا ٹھیک ہے بھائی جملہ بدلتا ہوں، یہ ہٹا. لبیت کا اجملو، بولا. بیتوکا اجملو. لبیتک اجمل. ہاں لا یقیناً، بیتوکا بولو اجمل. بولو بولو بولو. یقیناً تیرا گھر تیرا گھر ہے یقیناً ہے تیرا گھر ہے خوبصورت. خوبصورت. ہے خوبصورت. اب پہلے بار جا کے بولے تو اس کے دل میں کسک اٹھی کہ میرے گھر کو تعریف برابر نہیں کرے. بھائی تکا اجمل، تیرا گھر ہے خوبصورت. مزہ تو آیا نہیں. شیر خورما تو بنائے لیکن ڈرائی فروٹ نہیں ہے. مزہ آیا کیا؟ نہیں. تو ڈالو ڈرائی فروٹ، ڈالو لبیتک ڈالو نا، بیتوکا ڈالا تو نا. اجملو. لا بیتوکا اجملو. ہاں تو ماجد صاحب اس میں دیکھو، لا لگانے سے بیتوکا کا تو جو ہے تا نہیں ہوا. صحیح ہے، جیسے کہ ویسا رہا. اگر یہاں ان آتا تو کیا ہوتا تھا؟ ہاں بیتا. بیتا ہوتا تھا. ہاں تو یہ جو ہے بیچارہ غریب ہے، شریف ہے، کسی پر ایکٹ نہیں کرتا، حملہ نہیں کرتا. صحیح. تو اس کا نام کیا ہے؟ لام، لام الابتدا. لام الابتدا. لیکن ماجد صاحب انہیں صرف غریب نہیں ہے، شریف بھی. اچھا اچھا. کیا شرافت ہے اس میں معلوم ہے؟ ہاں اب سمجھو تم بیٹھے آفس میں، ہاں. تم تو بہت بڑے مینیجر ہے، آل انڈیا صحیح. مینیجر ہے. صحیح. لیکن کمپنی کا ڈائریکٹر آیا آفس میں، اچھا. تم ہٹ گئے اپنی کرسی چھوڑ کے. بیٹھے صاحب، کیا بولے؟ بیٹھیے صاحب. صاحب بیٹھے. یہ تو صاحب کون ہے بھائی؟ انا ہے. اچھا اچھا اچھا. صاحب میں ڈسنے کی عادت ہے، اچھا اچھا اپنے اچھا. اسم کو ڈس کر نصب میں لے جانے کی عادت ہے. صحیح ہے. لیکن لام صاحب بڑے غریب شریف ہیں. تو لام صحیح. صاحب کیا کرتے ہیں؟ جب سامنے ہے نا ماجد صاحب کا ہے پہلے ہاں کا ہاں. جو پلیسیا میں تین مبتدا، خبر اور خبر متعلق ہے، منتقل بالخبر. ان کو سامنے رکھے تھے. اوکے. ہو تو ان کی جگہ جو ہے سامنے بیٹھے تھے نا پہلے سے. ہو. لیکن آ گئی نا، اچھا اچھا اچھا. ان آتے کہ بھاگ کے پیچھے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ پیچھے چلے گا برابر. ہاں یہ ایسا تیرتا ماجد، یہ تیرتا تیرتے جو ہے نا. متعلق کیوں بالخبر بولا؟ کے پہلے آ جاتا. ہاں تو اس کو بولتے ہیں زحلقہ. بولو. زحلقہ. اب اس کا نام ہے مزاحلقہ. بولو. مزاحلقہ. تیرنے والا لام، سوئمنگ لام. بولو. اچھا اچھا. تیرنے والا لام. کیوں تیرتا بھائی نے؟ ارے بھائی انا آ گئی نا، اب انا میرے سے زیادہ خطرناک ہے، میں چلا چھوڑ کے نہیں جاتا، پیچھے چل جاتا. تو انا آتے ہی یہ لام صاحب ہٹ کر پیچھے چل جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. برابر. اب اپن پہلے کیا دیکھے تھے؟ لا بیتک اجمل. پڑھو زور سے. لا بیتک اجمل. لبیتک اجمل. ٹھیک ہے. لا بیتک اجمل. ہاں تو لبیتک انا کو ذرا دماغ میں کھجلی اٹھی. ارے لام سالہ سامنے بیٹھا ہے، میں جاتی اب دیکھتی کیا کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا کہ دیکھیں گے، میں تو ڈائریکٹر ہوں. تو برابر. یہاں پہ انا آ گئی. دیکھو آ گئی، انا آ گئی. انا بیتک. بولو.
इन्ना इन्ना बैतक बैतक ला अचामत आवाज अजमल। से पहले तो अटैक करती उन्हें इसम पे कर दी, बैतुका का बैतका कर दी, और ये लाम यहाँ था तो यहाँ आ गया। सही। ला, बोलो ला या लगाए, अजमलू का हमजा है, हाँ। ला अजमलू, अजमलू। तो आप कैसा पढ़ेंगे? बेशक घर यकीनन खूबसूरत है। अच्छा 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 अच्छा, बेशक तेरा घर बेशक तेरा घर यकीनन, खूबसूरत है। हाँ, इंडीड योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे पहले क्या था, इंडीड योर हाउस इज ब्यूटीफुल था, तो यहाँ पे क्या बोला, इंडीड योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। याद करो आप, सूर्य असर बहुत पढ़ते हैं। वल्लाह से इन इंसान, बोलो इन्नल इंसल इंसान इंसाना लफी खुसर। लफी खुसर, बेशक इंसान बड़े कसार है। तो ये बहुत खसारे में कैसा पैदा हुआ? वहां पे लाम हटकर पीछे चले गया, तो सही। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड लाम, लामल मुजालखा। ये याद रखो, नाम नहीं रखे तो याद रखो, फ्लोटिंग लाम, स्केटिंग लाम। वो देखा ना आपने फिल्मों में, बर्फ यस पर स्केटिंग करके लोग। यस हाँ, स्विट्जरलैंड में क्या करते हैं? बर्फ पर स्केटिंग करते हैं। सही। इसी तरह से लाम भी क्या करता? स्केटिंग करके पीछे चले गया। लाम यहां बैठा था, इन्ना आने से लाम बोला भाई ये बड़ी बहन आ गई, बहन नहीं है इसकी ये, लेकिन आ गई, अब मैं पीछे चल जाऊं। तो ला ला इंसाना खुसर का इन्नल इंसाना लफी खुसर। बस खत्म, इतना ही समझना था। और अल्लाह ताला अपने कलाम में ये लाम को बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो अ सेंटेंस विद इन्ना एंड लाम इज मोर एम्फेटिक, डबल मुश्किल हो गया। सही है। पहले गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही थी बगैर इन्ना के, बराबर है। वो बगैर लाम के, तो लाम आने से 90 की स्पीड से चली। अब इन्ना और लाम दो आ गए, इसलिए वो गाड़ी 120 की स्पीड से भाग रही। तो मुजालखा का मतलब है टू स्लाइड, टू ग्लाइड, टू स्लिप, टू रोल। अभी जरा सांस लीजिए ठंडी, समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को सिखाइए और दो चार सवाल कीजिए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ये ला बैतु का अजमल, इसका उर्दू में तर्जुमा बताइए ना। बेटे भाई तू आया तो ये अखफ किया हुआ इसम है, उसको अल नहीं है, तनवीन नहीं है, तो मुदाफ बन गया वो, उसके साथ का लगा हुआ है, तो होगा तेरा घर। यहां तक हो गया, लाभ कुछ होगा, तेरा घर। और अजमल का मतलब जमील से बना हुआ है, अच्छा अच्छा बराबर है। सही सही ये कंपैरेटिव वर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। सही। अजमल। ठीक है, यस सर। मेरा घर है बहुत यानी खूबसूरत, ब्यूटीफुल। सही है सही। लेकिन ये लाम लाने से क्या हो गया? तो लाम के मायने लिख लीजिए आप, यकीनन तेरा घर है खूबसूरत। अब इससे दिल नहीं भरा तो इन्ना भी लगा दी हमने, और इन्ना आते ही लाम उछल कर यहां से स्केटिंग करके बैठ गया। तो इन्ना आते ही इन्ना ने पहला काम ये करी कि इन्हें अपने इस्म के ऊपर नस्ब लगा दी, बैतुका का बैठा का, बेशक तेरा घर है बहुत ही खूबसूरत, ऐसा बन जाएगा। ये जुबानी ट्रांसलेशन में ऐसा इसका इस्तेमाल करते, समझ में आया? यस। हाँ, और भी कोई सवाल आते तो पूछिए, आराम से पूछिए। नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और इसके बहुत सारे एग्जाम हैं। जी। तो यहाँ पे मैंने ये डिजाइन इसलिए बनाया हूं कि इल्म की ताकत ज्यादा है, तो ये जुगाड़। देख रहे हैं, इन्हें इल्म के ऊपर ज्यादा हमको उसको स्ट्रांग स्ट्रांग बनाती है। उसके अलावा अगर ला है तो वो भी अपना सही। तो इल्म इसके अंदर दो ही क्वालिटीज है, इसके अंदर तीन क्वालिटीज। सही। मुक्तदा को मंसूब करता है, ताकीद मफहूम पैदा करता है,
यहाँ पे क्या क्या अभी ला में ताकीद सिर्फ एक ही खाली ताकीद का मफहूम पैदा करता, बाकी एराब चेंज नहीं करता। वही बात मैंने रिपीटेड लिखा हूं। सही। इसके दो नाम है, आपको नोट कर लीजिए, लाम लाम इब्तिदा और लाम मुजालखा। लामुजार मुजालखा का मतलब फ्लोटिंग गिरने करने वाला, वाला, गिर के जाने वाला, डिस्प्लेसिंग। हाँ बस बस बस। और उर्दू वाले अरबी वाले बहुत बार इसको जब जिन्हें अकेला सामने बैठा रहता तो लाम इब्तिदा कहते हैं। इब्तिदा मतलब शुरू का लाम, हो आगाज, आगाजी, शुरुआती सलाम। अब यहाँ देखिए और एक एग्जांपल देखिए, नॉर्मल सेंटेंस, ज़ैद है नेक, मुब्तदा खबर। ज़ैदुन सालिहुन। माशाअल्लाह। अब हमको ज़ैद के बारे में बोलना, यकीनन ज़ैद बड़ा नेक है यार, ज़ैद नेक है बताना, क्या बताना है? बड़ा यकीनन। यकीनन ज़ैद बहुत नेक है। ला में इब्तदा आगे बढ़ गया, देखो ला कोई तब्दीली नहीं कर रहा है, सही। तो क्या होने का, लज़ैदुन सालिहुन। ज़ैदुन सालिहुन। इसके चार मीनिंग निकल सकते हैं। सचमुच ज़ैद पाक नेक है, यकीनन ज़ैद है नेक, कोई शक नहीं ज़ैद नेक है। ऐसा इसके अलग अलग मायने जुमले के हिसाब से निकाले जाते हैं। यस, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक मस्त हो जाएगा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। खाली लाम ऐड करा हुआ है, कुछ नहीं करे हुआ है, और लाम ने कोई तब्दीली नहीं करा, याद रखना ये लाम तब्दील करने वाला नहीं है। गैर आखिल, गैर गैर आखिल नहीं है भाई, गैर वो क्या, आमिल आमिल। जार का आमिर गैर आमिल। गैर अब जरा आमिल। सा अब जरा सा कोशिश कीजिए, लाम दो किस्म के आ गए ना भाई अपने पास, लफड़ा चालू हो रहा। एक लाम से ली था अपने पास जो कि हर शर्त सही के लिए, हो ली फॉर, ली अखुन वाहिदुन, बोलो मुझे है एक भाई, मेरे लिए एक भाई है। सही, ली अखुन वाहिदुन। ठीक है, तो अब जरा देखें यहाँ पे लाम जब भी आएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये हर जर है क्या या फिर लाम इब्तदा है। समझ में आया? हो धीरे धीरे बताओ। अब जरा पढ़िए, ये क्या है? ला दिख रहा, लाम जबर ला दिख रहा। हो अब ये अब्दुल। जो दिख रहा है अब्दुल, अब्दुल, ला ये अब्दुल। इसम है फेल है, क्या है बताओ मुझे। ला इस इसमें नहीं अब्दुल, इसमें कैसा पहचाने आपने? इसमें दुन है ना उसके ऊपर, उन तनवीन। तनवीन है, तनवीन है। तो ये तनवीन यानी कि किसके बारे में बात चल रही है? आबिद, बंदा, मोमिन। कौन है? मोमिन। बेशक। अब देखो यहाँ पे धुन का दिन हुआ क्या या धन हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो कौन है? ये लामी इब्तिदा है। लामी इब्तिदा। कुछ तब्दील करा क्या मैंने? नहीं। नहीं सर। हाँ, ये पहचानने की आदत डालो। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे यकीनन मोमिन। देखो बंदा मोमिन, बोलो मोमिनुन, बोलो मोमिनुन। यकीनन बंदा है मोमिन। बंदा बंदा यानी कि डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन होता है बंदे का गुलाम। मोमिन गुलाम, बोलो मोमिन गुलाम मोमिन गुलाम। ऐसा कैसा बन गया ये? अब देखो अब्दुल का डिग निकालो, अब्दुल नकीरा है, बराबर। सही है, मोमिनुन में नकीरा है, सही है, ये रफा है, ये भी रफा है, सही है, ये वाहिद है, ये वाहिद है, ये मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है, सही है। और इसकी सिफत ये है तो बोले क्या होगा? कैसा बंदा? मोमिन बंदा। मोमिन बंदा। तो ये हो मौसूफ सिफत हो गई। हो जी, मुरक्कब तो तौसीफ पढ़िए, की। यकीनन मोमिन बंदा। यकीनन मोमिन है।
अब आ रहा है खैरुन, खैरुन, खैरुन के बाद मिन आ रहा है, से बेहतर। बोलो, बेटर देन खैरुन मिन खैरुन बेहतर। खैरुम मिन हाँ बोलो, बेटर बेशक मोमिन बंदा है बहुत शक बेहतर इससे, यहाँ से आ रहा है, देखो से, बेटर इन दैन, बेटर देन बेटर देन मुशरिक से कंपैरेटिव मुशरिकिन से, मुशरिकिन एक मुशरिक दोस्त से, एक मुशरिक दोस्त से मोमिन गुलाम बेहतर है बहुत। ओ इसी तरह शादी के लिए कहते हैं, एक मोमिन गुलाम बंदी बेहतर है ब्यूटी क्वीन से। सही लोग जो फिसल जाते हैं ना गोरे छिटे देख के, यहाँ फंस जाते हैं। माजिद साहब समझ में आ रहा है तुम्हारे? बिल्कुल बिल्कुल तो ये ला में ताकीद लगा है, क्यों? सर्टेनिटी डालना था। उर्दू में पढ़ो, यकीनन मोमिन गुलाम ज्यादा बेहतर है किसी मुशरिक से। यकीनन मोमिन गुलाम ज्यादा बेहतर है किसी मुशरिक से। तो क्या आप तमाम लोगों को लामे इब्तिदा का इस्तेमाल समझ में आया क्या? सही जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा जूम करो सर इसको। दो करता हूं बस। हाँ राइट। ये जो मैं आपको एम्फेसिस देना सिखा रहा हूं, जैसे सामने से कहते हैं मुताले के खबर को सामने लाए थे, तो क्या बोले थे तुमने? खबर मुकद्दम, लिल्लाहि माफी समावाति माफी अर्द। याद है ना, आपने करेक्ट है ना पहले? सही सही तो ये सेकंड, इन्ना सेकंड काम कर रहा है, ये तीसरा है। जोर देने वाले कितने होगा अपने पास में? एक तो आप खबर को सामने लाके जोर देंगे, नंबर 2 इन्ना लगा के जोर दे सकते हैं, नंबर 3 लाम में इब्तिदा लगा के जोर दे सकते हैं, और लाम और इन्ना मिला के जोर दे सकते हैं। ठीक है? यस हाँ। तो लाम जो मैं कह रहा था हर जर का, उसके मायने के लिए लाम जर कम्स विद जबर एंड मेक्स इसम मजरूर। अब देखो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए। सर इसको बड़ा कर दीजिए। ठहरिए एक सेकंड पुट्टी बेटा, यहाँ पे हमने ये कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? ला हरफ जर ये लाम जर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओ हरफ जर है, और वो कौन सा है? ज़ैन ने क्या? और मुस्लिमों को क्या करा रहे हैं? मुस्लिमीन हाँ, तो इसकी पहचान ये है कि मैं अगले वाले इसम को मजरूर करेगा, ये पहचानना है। और मजरूर करते ही बोलना मुसलमान के लिए। तो सही है मुसलमान के लिए। और ये लामे जर आपको याद है, वो एक मर्द के लिए लहू, दो लहू के मा लिए फिस लहूमा, समावात लहूमा, औरत के लिए लहू, औरत के लिए लहा, लहूमा, लहुन्ना, तेरे लिए लका, लका लकुमा लकुम लकुमा लकुम, फिर लकी, लकी लकुमा लकुन्ना लकुन, खुद के लिए ली, ली और हमारे लना लिए लना। लाना हाँ, अस्सलामु अलैना आया था ना। हाँ बराबर सो ये हो गया पहचानने का तरीका। क्या बोल रहे हैं अपन? डिफ्रेंशिएट करना सीखो, ये लामे जर सर है थोड़ा या बड़ा लामे कर जर है। दीजिए ना। इससे बड़ा करा तो बोर्ड फट जाएगा। बस। यस जी सर। हाँ, देखिए, और आप फिक्र ना करो, ये इसका मटेरियल तैयार हो रहा है और आप लोगों को देने के लिए तैयार कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो, डिफरेंशिएट, फर्क करना सीखो लाम जर और लामे ताकीद में।
अब यहाँ पर जब हम लाम लगाए थे तो क्या होता, ली मुस्लिम मिन हुआ था, यहाँ पे लाम जबर लाए तो ली मुस्लिम मिन हो रहा है। ये नहीं कि ये है हमारा लामी इब्तिदा मुजालफा जो मुतब्दिल नहीं कर रहा है। अब इसमें माजिद और सब बच्चे ध्यान रखो कि जब ये लाम जुड़ता है मुत्तसिल जमीर से तो जमीर क्या हो जाती है, बोलो जमीर कौन सी रहेगी, अटैच प्रोनाउन बन जाता है, अटैच प्रोनाउन शायरा क्या रहेगा, उसका एरब रफा रहेगा। अभी फैसला नहीं सर, नसब रहेगा। नसब नहीं रहेगा। नहीं, ये देखो ये लाम कौन सा नहीं, हर के हरफे जर में जर जर। बनेगा सर। जर बनेगा। अच्छा अच्छा, यार बनेगा तो क्या हुआ, हुआ से क्या हुआ, वो हो गया। सही है। वो दिख रहा है लेकिन है जर। देखो 2 मर्तबा इसम जर में आता है, एक हर जर के साथ, दूसरा मुजाफ मुजाफ इलैहि में। याद करो, हमेशा याद रखो, ये सही है। लिख के रखो। इसम या तो एक्चुअल नाम आता है तो भी जर में जाता है, प्रोनाउन आता तो भी जर में जाता है, हालांकि इसके ऊपर दिखती नहीं एक्शन। तो 2 जगह ऐसे मिलेंगे अरबी के अंदर आपको, अरबी कुरान में हरफे जर की वजह से प्रोनाउन को भी हम बोलेंगे जर की हालत। अच्छा अच्छा अच्छा, और मुदाफ, देखो बैतुक का था ना, तो भी वो बोलते हरफे जर है, तो बैतुक है मुदाफ है, का पे देखना नहीं है तो वो मबनी है वो। तो बोलो, फिर से बोलो मेरे को, 2 हरफ जर की मर्तबा वजह से 2 दो मरतबा मर्तबा पूरे कुरान में 2 मर्तबा कुरान में 2 मर्तबा 2 मरतबा इस्म 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 या इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ है, क्या या बोलेंगे इस्म उसको, की जगह इस्तेमाल है। इसमें इस्म दमीर, के इसमें इस्म जमीर। की जगह इस्तेमाल किया गया है इसमें जमीर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप नोट करो, हमेशा की आपकी परेशानी दूर होने वाली, इससे लिख के लो। बस लिख रहे। दो हाँ? पूरे कुरान में 2 मरतबा कुरान में नाउन, जैसा नाउन दिए अपने हामी दिन होगा, नाउन है तो भी क्या बनेगा, जर में आ जाएगा। और अगर इसके जगह इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन में, क्या था हमारा, हुआ था, हुआ क्या बन जाएगा, हु हो। तो नाउन आए या प्रोनाउन आए, बोलो पूरे कुरान में नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, पूरे पूरे कुरान कुरान में नाउन या नाउन आओ प्रोनाउन या आए। प्रोनाउन आओ, और उनकी हालत एराबी हालत है जर। उनकी एराबी हालत अगर जर है, अरबी। बोले के 2 वजूहात है, एक होना हर जर शुरू में आना, और सेकेंड टाइम उन्होंने बनना मुजाफ का मुजाफ इलैहि। जी सर। माजिद हो गया, समझ रहे हैं, यस, बोलूं क्या मैं? बाय द इफेक्ट ऑफ जर इट इज इन जर्री हालत, ये हुआ भी जर्री हालत है, हाँ सही दोनों भी जर्री है। और अगर मुदाफ इलैहि के मुदाफ के बाद मुदाफ इलैहि है तो उन्हें भी जर में जाएगा, हाँ में दिन हुआ। हाँ सही। बोलो मत, क्या बोलना चाह रहे हो। इन द एंटायर कुरान नाउन और प्रोनाउन अगर इसके साथ अगर हरफ जर आता है तो उनकी एराबी हालत जर होगी। हरफ जर शुरू में आता यानी तो फिर मुदाफ का मुदाफ इलैहि में आता। मुदाफ का मुदाफ इलैहि जो होता है वो भी जर्री हालत है। वो जर्री हालत में। तो अब यहाँ पे देखो, ये लाम दिख रहा है, ये हर जर वाला था, कौन सा हर्फ है, हरफ जर है। तो इन्हें हुआ को क्या करा, इन्हें वो कर दिया, किया को क्या करा, हाँ कर हाँ कर दिया। दिया। अंत को क्या करा, का कर दिया। हाँ कर दिया। तुम को क्या करा, तुम कर दिया। नहनो को क्या कर दिया, ना कर दिया। लेकिन इन्हें नहीं करता ना, इन्हें किस पे काम ही नहीं करता, तो इसको लहुआ ना करता, लहुआ यकीनन वो मर्द, क्या बात है। यकीनन वो औरत,
यकीनन तू, यकीनन तुम, यकीनन हम सब। ये बहुत ही डेलिकेट मामला है, याद रखो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। राइट। क्योंकि आपको मालूम है इनको अटैक करने ही नहीं, इसको तो इन्हें किसको अटैक करते हैं, लेकिन ये हर जगह अटैक करता है। जम गया क्या? अने लहू बोले जी तो, सर। लहू बोल तो उसके लिए, के उसके लिए, लिए। और लहू है ना, लहू, और ये यकीनन लहू, उन्हें, ये लहू बोले तो डेफिनेटली फॉर हिम, हाँ सर्टनली नहीं, फॉर और हिम। नहीं, और नहीं है माजिद, माजिद साहब एक मिनट में लिख के अच्छा। देता हूं। इसका मतलब है फॉर के साथ हिम, फॉर हिम, और ये है इंडेड हिम। फॉर हर, फॉर यू ऑल, सही, और फॉर अस, सबको फॉर लगे। लेकिन यहां क्या होगा? सर्टनली। रुक रुक रुक, सर्टेनली ही, यकीनन उन्हें। सही। यहां पे तब्दील हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। हुआ का मतलब वो एक मर्द, यकीनन वो मर्द। होती बारीक है ये, ये समझना तो नहीं है, यकीनन वो औरत। बराबर। सर्टनली शी, सर्टनली यू। तो लकुम दीनकुम वल्ले दिन। हाँ, लकुम आ रहा ना, तो लकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। हाँ, और उधर रहता तो लका। और हाँ, तो लफी, यहाँ पे अगर कहा लफी जाता, खुस्र, लफी हाँ, खुस्र। लफी उसरिन है वो। लफी खुस, लफी खुसरिन क्या क्या भाई, देखो एक तो है ला लगा हुआ है, उसके बाद आ रहा है फी, फी हुर्फ जर, और उसके बाद आ रहा है खुसरिन के नीचे जेर, सी की वजह से आ रहा है। ये आ रहा है आपका लामे मुजारफा है, बहुत खसारे में। ये लामे जर नहीं है, सही है। इन्हें बोल रहा बहुत। समझ में आया? यस। देखिए यकीनन। आप सीखते टाइम पर आपने इतना भी सीखना, बहुत बड़ी सीख है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसका अब आगे असली का चार, अचार कहाँ है इसका? क्या था अचार? सर आपने कहा चार तर्जुमा इसका होगा। चार तर्जुमा क्या होगा बेटा, उस लोग टाइम में समझेंगे। कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इंडीड सर्टेनली प्रोबेबली। हाँ वो सब छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो, आपको इंग्लिश में खाली जो है यकीनन याद रखो, सर्टनली याद रखो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो इसको, जरा देखिए, पूरे बच्चों ने देखना गौर से। ला के साथ हुआ है, ला के साथ क्या है, हुआ है। हुआ कि हुआ है? हुआ। हाँ, तो ये देख के हुआ। पहचान लेना आगे, ला के साथ वो होना था, ये हुआ है, इसका मतलब ला में इब्तिदा है ये। लामे लामे इब्तिदा पिता है, है। डर नहीं है। लहू होता तो चर। हाँ, लहुआ खैरुन, बेहतर है, यकीनन उसके लिए बेहतर है। बेहतर है क्या बेहतर है? लिस्साबिरीन। ली आ रहा है, ली आ रहा है, साबिरी, साबिरू ना कर, साबिरी ना हो रहा है, तो ये हर जगह है। सही। ये हर जगह, ये हर जगह। और वो तो मतलब हरफे होना का इब्तिदा इल्म में है या हरफे जर है? ये इब्तिदा है, और और ये ये हर हर जर है। जगह। हाँ, लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो, स्क्रीन शेयर करो। लोग तंग आ जाते हैं लाम को देख देख के। देखो यहाँ पे मैंने लिख छोड़ा है आपके लिए, ये लाम क्या, लाम है इब्तिदा ताकीद वाला है, और हुआ जमीर है, मुनफसिल है, ओरिजिनल जमीर है ये। और ये देखो ली आ गया, ली क्या है, जार मजरूर बना रहा है, अपने बाजू के इसम को मजरूर बनाया है। ये क्या आना चाहिए, साबिरूना था, मुस्लिमूना था, मुस्लिमीन हो गया ना, वैसे साबिरूना था, साबिरीना हो गया। ये हर घर में अटैक करा यहाँ पे। बेशक ये है बहुत बेहतर लोगों के लिए सब्र करना, सब्र करने वालों के लिए बेहतरी है बताना है। बराबर।
यकीनन वो ज्यादा बेहतर है सब करने वालों के लिए। और चलो फिर से, चलो फिर चलेंगे वापस, एक जगह जमा कर रहा हूं मैं। अब जरा पढ़िए, पहले क्या लिखा है? जैदुन जैतून सालेहुन। ये जैदुन मार्क्स का सालेहुन। नॉर्मल जुमले इसमिया है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, कोई भी ताकीद का उसको नहीं है, हमें ताकीद वाले बनाना है। जरा खामोशी से सुनिए, फिर मैं आपको, मैं जब पूछूंगा, जब, अरे खामोश रहो जी, जब मैं पूछूंगा, जब बताना है आपको। तो अभी तक हमने सीखे हुए दो चीजें सीखे, एक इन्ना सीखे और एक लामे ताकीद सीखे। तो लामे ताकीद कौन है? हर जगह हर्फ है, इन्ना भी हर्फ है, ये आमिल है या गैर आमिल है? ठीक, जी सर। जरा बीच में बकबक करने वालों को बंद करो, मुंह बंद करो उसका। ऐसा कौन सा बड़प्पन है जो बीच में टर टर करते हैं? चलो बना के अभी बोलना, मैंने जो बता, हाँ, बना के बोलना जी। नहीं नहीं, माजिद ये नोट करो, नोट सही है। ऑलराइट, लामे जर क्या है और लामे लाम तारीफ क्या है? करिए। अब वो जो लाम तारीफ कर रहा हूं मैं, वो कौन सा लाम है भाई? जरा बहुत कोई बताएंगे मुझे, लाम तारीफ क्या है? जी सर, जो अल में लाम आता है उसको लाम हाँ, तारीफ कहते हैं। डिफाइनिंग लाम रहता हो, कौन सा रहता? अच्छा अच्छा, डिफाइनिंग। डिफाइनिंग लाम। अल के ऊपर सुकून रहता। खास किताब। अच्छा अच्छा, तो लाम कितने? तीन हो गए अपने बस। सही एक है। खास किताब में अल आ रहा है, हाउ, मारफा वाला। ये लाम कर रहा है, और इब्तदा है। एक इब्तदा वाला आ रहा है। तो बराबर। तीन आपके जेब में लाम रख लो। इब्तिदा, जर, तारीफ। माशाल्लाह। अब जरा देखें यहाँ पे की पॉइंट्स जो पढ़े हमने, उसमें क्या क्या है? इन्ना और लाम बराबरी की ताकीद पैदा करते, लेकिन इन्ना जो है नसब करता, ये लाम कुछ नहीं करता। सही। इन्ना का बड़ा फ्रीक्वेंट है, बड़ी कंटिन्यूस इस्तेमाल है कुरान में। सही। और इन्ना कहां पे आती हुई जगह इसकी फिक्स है, जुमला इसमिया से पहले, उन जगह छोड़ती नहीं अपनी, बहुत से वो। लाम जगह छोड़ता है, याद रखें। सही है। लाम फिसल के आगे चल जाता है, यहां फिसलाएंगे, देखो उसको अभी पहले देखेंगे। जैदुन सालेहुन, जैद है नेक, ला जैदुन सालेहुन, यकीनन है, यकीनन जैद है नेक, आ गया। सही है। तो ये ला लगाने से कोई तब्दीली हुई? नहीं हुई। नहीं सर। चलो अब आगे चलेंगे। जैदुन सालेहुन, जैद है नेक, नॉर्मल। इन्ना लाओ, जैदन इन्ना कर दिए। जैदन सालिहुन, हाँ इन्ना जैदन सालिहुन, और हाँ ली जैदुन सालिहुन। हाँ, अब देखो यहाँ पे आज नहीं, ये तुम्हारा देखो, जैदुन सालेहुन, इन्ना जैदुन सालेहुन, यहाँ तक ठीक है। इन्ना जैदन सालिहुन। आप देखेंगे, पढ़ो। जैदन सालेहुन, जैदुन सालिहुन, जैदुन सालिहुन। ला जैदुन सालिहुन। रुको, यहाँ पे डिटेल पढ़ो। नो इम्फेसिस, मुब्तदा जैदुन, खबर सालेहुन, कोई तब्दीली नहीं है। अब ला ला विथ इम्फेसिस, ला जैदुन सालिहुन। जैदुन पे कोई तब्दीली नहीं, नहीं खबर पे है, कोई तब्दीली नहीं है। इन्ना लाओ, इन्ना इन्ना जैदन। अब यहाँ पढ़ो, इन्ना बदल दिया इसको, ये हो गया जैदुन आपका को जैदन। पूरा खुलासा। यस बॉस। फिर एक से बाकी चलेंगे। आप देखो माजिद साहब, डबल इम्फेसिस, डबल बूस्टर मारने का। राइट राइट। पहले बोलो जैदुन सालेहुन, जैदुन लगाओ इन्ना जैदुन ला सालेहुन, आहा, बेशक जैद बड़ा ही नेक है। आया समझ में? यस। जी ये सर। मजा है कुरान में, ये है मजा। इंडीड जैद इज श्योरली पायस, यकीनन जैद है, यकीन बोलो, बेशक जैद है, यकीनन बड़ा नेक, ऐसा ही बना सकते। बेशक जैद है, यकीनन बड़ा नेक। डेफिनेटली। हेलो हेलो हेलो, एक स्टेप आगे चल रहे हैं हम, और एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तीसरा बूस्टर लगा रहे भाई, तीसरा बूस्टर लगा रहे। वाह,
हाँ देखो देखो, जैदुन सालिहुन बोलो, जैदुन सालिहुन, इन्ना जैदुन जैदुन लसालिहुन, इन्ना बेशक जैदुन जैद है सालिहुन, बड़ा नेक, वल्लाही इन्ना जैदुन सालिहुन, हसन, वल्लाही, बेशक जैद है बड़ा ही नेक। हाँ, ओहो, कितने बूस्टर है माने? 3 तीन ट्रिपल, ट्रिपल बूस्टर। सही है। अब इसके अंदर और एक बूस्टर लगा सकते हैं। अपन क्या करते हैं कि अगर ली, चाहे तो अपन अपने ली, खबर को नहीं, हाँ, नहीं, खबर को अपन सामने ला सकते हैं। वो पहले बताया था ना, हाँ, वो बताएंगे आप, बाद में बताएंगे। तो अब आपके पास में ली का खजाना, लाम के खजाने 3 हैं, लाम ताकी, लाम जारा, लाम तारीफ। तारीफ है ना, तारीफ क्या है? द है ये, डेफिनेट आर्टिकल। यस, ओके, हाँ, समझदार आदमी ये सेव करेगा। ले चुके हैं। इसके पहले की स्लाइड होना, इसके एक जस्ट पहले की, और जी आप हुक्म वल्लाहु करो, वल्लाहु के बोला, अरे हुक्म करो, अब आपकी भी बनाएगा। ये चे, लो जी लो, आपको ये तमाम स्लाइड्स हैं, जब हमारा पढ़ाना खत्म होता है पूरे के पूरे आपको गिफ्ट करेंगे हम। आ गया यहाँ तक सबको? यस, तो ये लाम के पूरे कहानी हो गई। अब ये स्लाइड ले लो माजिद साहब, ये पूरे आ गए। जैदुन सालिहुन, ला जैदुन सालिहुन, इन्ना इन्ना जैदन जैदुन सालिहुन, इन्ना जैदन ला सालिहुन, वल्लाही इन्ना जैदन सालिहुन। ये पूरी कहानी खलास। माशाअल्लाह। एक मिनट, राइट। तो इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए आपके पास में, 4 इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट था खबर को सामने लाना, दूसरा इंस्ट्रूमेंट था इन्ना लाना, तीसरा सीखा है ला लाना, चौथा लाए इन्ना और ला मिलाना, और 5वां लाए अल्लाह की कसम खा के। किस चीज से कसम खा के? ये सर ये आपका जो है वल्लाही जो है हमने जो एमएस के लिए ऐड किया हुआ है, तो उसमें वाव जो है वो हरफ जर है। खस्मिया। देखो बेटे, हर जर नहीं है, हरफ खस्मिया है। तो वाव जो आता हमेशा से वो अपना कंजंक्शन होता है और बोलता हो, उसमें और इसमें फर्क कैसे करेंगे? वो ये हर बीच में जर के आता हो, मानिंद नहीं, ये हर जर के मानिंद काम करता है। सही, इट इज जस्ट, इट लुक्स लाइक ए हर जर का अन्ना हर जर। समझे? जी सर। अच्छा सवाल करें, भूल गया था। यहाँ पे देखो, वह लस, ये वाव के साथ असरी हो गया। खसम है असर की, यानी कि जमाने असरी। अब देखो, इन्नल इंसान ना, इन्ना ने ना कर दिया, सही, ला आया तो ला ने कुछ नहीं करा, फी अपनी जगह है। ये फी इसके साथ आ रहा है, ये फी और ये मिलकर जो है मुरक्कब जारी चल रहा है। खसारे में है। कैसे पढ़ेंगे? बेशक इंसान बड़े ही खसारे में है। बेशक इंसान है बहुत खसारे में। सही है। असर के जमाने की कसम, बेशक इंसान बड़े ही खसारे में है। शाबाश शाबाश। यहाँ पे मायने लिख दिया मैंने, जरा पढ़ो। द वन हु इज एड्रेसिंग जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कसम खा रहा अल्लाह की, क्या वक्त की कसम खा रहा है या किसी चीज को कसम खा रहा, फिर इन्ना लगा रहा, फिर ला लगा रहा। ये लास्ट स्लाइड है, आप खुद हल करेंगे इसको घर ले जाके, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको नोट कीजिए, हल कीजिए, समझा के कल बोलना। यस, कल कर रहे हैं, चलाइए। ऑडियो भेजो मेरे को। यस, इसकी वजह से क्या होगा माजिद? जी, बहुत सारे आयतों के खुलासे आप सुनकर, लिखकर, समझकर करेंगे। सुनकर भी करेंगे कि तो सुनने के बाद आपको इन्ना बोलेगी जबर दिखता, ला दिखेगी, आपको समझ आता, अच्छा डबल बूस्टर है, ट्रिपल बूस्टर है, सिंगल बूस्टर है। सर बतौशु अब का पहले मायना इसमें असद भजन, पहले इसमें छे तो इन्ना भी आ गया और ला भी आ गया, दूसरे में भी दिख रहा हूँ। बतशु बोले तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़, ग्रिप। यहाँ पे लिख के दिया मैंने, इंडेड द क्रशिंग ग्रिप ऑफ योर लॉर्ड इज वेरी सीवियर। आपकी जो रब की पकड़ है बहुत शिद्दत की है, छोड़ते नहीं हो।
یہ سب ریڈی میڈ آپ کو حلوہ پوری بنا کے دیا ہوا ہے، معنوں کے ساتھ، آیتوں کے نمبر کے ساتھ. قرآن میں چیک کیجئے، پڑھیے، سیکھیے، سمجھائیے. تو یہاں بہت میرا بڑھیا، کام بہت بڑھیا سر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ سبحان سیدھا اللہ. سیدھا سورت آیت کی اس کے ساتھ ہی چھیک تو ارے بیٹا یہ ہر جگہ قرآن میں اتنا شدت سے استعمال ہوا ہے انا اور لام، لام زبر لا، کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائیں گی پڑھ کے. ماشاء چلو یہاں رکھتا ہوں. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام 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 ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ڈبل تاکید. اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیا ہوا ہے گروپ میں. ہاؤ کل کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے یہ. انشاءاللہ. جی سر، جزاک اللہ خیر. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ بالکل بے شک. جی سر. پڑھ کے سنائیے. جی. سبحانک لا سبحانك لا سبحانک لا علم لنا علم سبحانك لا لنا علم لنا إلا ما إلا علمتنا ما إنك علمتنا أنت العليم الحكيم. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ماجد سر آپ پڑھیے اکیلے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بہت اچھے. تھوڑا سا کریکشن ہے صرف یہاں پہ، یہ الہ نہیں ہے، اللہ ہے. اچھا اللہ. اللہ. سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا. تو پڑھنے کا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سر ہاں. علم الحمد. لنا بولے سر. میں علم سر لنا ہے سر. تھوڑا سا انتظار کرو، سنے آیا تھا میرے کو بھی. یہ جو یہاں تک ہے نا ماجد سر، جی. یہ لا علم، لا علم. اچھا اس کے بعد یہ لنا الگ سے ہے، یہ دونوں سپریٹ سپریٹ ہے. اچھا اچھا. اگر دونوں کو آپ یہاں پہ تشدید کے ساتھ اگر پڑھیں گے لام کو ڈبل، ہاں. تو یہ دونوں جڑ جائیں گے. مل جاتے. آپ پڑھے علم لنا، اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اگر آپ ویسا پڑھے ہاں تو لکھنے والا جو کاتب ہوتا ہاں. تو وہ کیا کرتا، یہ علم ہے نا، میم کے اوپر زبر ہے، تو اس کو سکون دے گا. نہیں، اس کو انہیں کیا کرتا، دو زبر دے دیتا. اچھا اچھا تو اچھا. علم
क्योंकि नून साकिन या तनवीन या जो भी है दो पेश और नून साकिन के बाद अगर लाम आता तो वो नून लाम मर्ज हो जाते और लाम पे ऑटोमेटिक यहाँ पे तजदीद आ जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से इसको दोनों को क्या करना है, अलग अलग करके पढ़ना है। ला इल्मा लना, इल्मा लना। हाँ फिर से एक मर्तबा पढ़िए। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा हाँ अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को समझ में आ गया, जी सर, सबको पढ़ने का तरीका समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। जी जी सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वानका ला इल्लमा लना इल्ला मा अलमतना इन्नका अलम नहीं अलमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाँ हाँ अलमतना, हाँ हाँ। आपकी जो गलती हो रही ना वो शुरुआत की लाइन में हो रही, यहां से यहां तक गलती हो रही। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। इल्ला मा अल्लमतना। हाँ जी, तो इसको एक मर्तबा फिर आप सेपरेट अकेले में बैठ के घर पे माइक बंद करके इसको प्रैक्टिस करिए क्लास के बाद, ठीक है। जी अब ये पढ़ाने की वजह ये है कि बार बार आप लोगों को जो इसका पढ़ने का जो तलफ्फुज कराया जा रहा, तो ये बहुत अहम है हमारी जिंदगी के लिए। हमारी जिंदगी में रोज काम में आने वाली ये अल्फाज है, इस वजह से इसको मैं आपको पढ़ने का भी तरीका समझा रहा था। तो बहरहाल ये है वो अल्फाज जिसका हमने अभी तक पढ़ने का तरीका देख लिया। अब आगे चल के हम इसका ग्रामर देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला तरीका है वो क्या होना चाहिए, किसी भी हर लफ्ज को अलग अलग पढ़ना है। हाँ अलग पढ़ना है। तो हम इसको हर लफ्ज को अलग अलग करेंगे और इसका तर्जुमा करेंगे, इसके अंदर का ग्रामर भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आज जो पढ़ाया गया है, आज जो हमने पढ़े शुरुआत में, उसको एक मर्तबा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अल्फाज थे, कुछ जुमले हैं जो आज हमने देखे कि इन्ना को ताकीद पैदा करने के लिए, जुमले के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए दो हरूफ है। वो कौन से है? इन्ना और ला। लाम जबर ला, इन्ना और लाम जबर ला, ये दोनों हरूफ है जो जुमले के अंदर ताकीद पैदा करते। और कौन से जुमले में ताकीद पैदा करते हैं? जुमला जुमला इस्मिया के अंदर ये दोनों ताकीद पैदा करते, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्ना है उसका नाम क्या है? पूछा इन्ना का नाम क्या है? इन्ना का नाम हरफे तौकीद तौकीदिन व नस्बिन, इसका खुद का नाम है, इसको झूले में डाल के रखे वाला नाम है। अब इसका खानदानी नाम क्या है? हुरूफ है मुशब्बह बिल फेल, इनका खानदानी नाम है। और इन्ना का पर्सनल नाम है हरफे तौकीदिन, ये होगा। अब ये जो लाम है, ये लाम के नाम जानना उतना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों ने गौर किए होंगे तो आप इसका नाम बताइए, क्या नाम है? इब्तिदा। लामे इब्तिदा। लामे इब्तिदा। इब्तिदा, ठीक है। हाँ, अब इसका दूसरा और एक नाम है, और एक स्टेटिंग है, इसको पता नहीं क्या है। लामता मुज़ालफा, लामे मुज़हलका। हाँ, ये दोनों नाम है इसके दो अलग अलग पोजीशंस पे। अगर शुरुआत में आया तो वो लामे इब्तिदा है, और अगर जब इन्ना आ गया फिर वो फ्लोट करके इधर आ गया तो वो लामे मुज़हलका है। तो बहरहाल हमारे पास जुमले में, जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए दो हुरूफ है, एक है इन्ना और दूसरा है लाम जबर ला। हमारे पास एक जुमला था,
जिसका स्क्रीनशॉट लिए आप लोगों ने, जैदुन सालिहुन सालिहुन। क्या मायने हैं जैदुन सालिहुन के? जैद नेक नेक है नेक नेक है जैद, औ, क्या जैद है नेक? जैद है नेक जैद है नेक नेक। ये है जुमला इस्मिया। इसलिए अब इस जुमले के अंदर हमको ताकीद पैदा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ला जैदुन सालिहुन इन्ना जैदन सालिहुन लसालिहुन ल जैदुन सालिहुन। ये पहला तरीका है जुमले में ताकीद पैदा करने, ये फर्स्ट स्टेप है। जी उसके सर। बाद दूसरा, इन्ना जैदन सालिहुन हाँ, इन्ना जैदन इन्ना जैदन सालिहुन लसालिहुन इन्ना जैदन सालिहुन जैदन सालिहुन सालिहुन सालिहुन। ये एक जगह लाम जबर ला का इस्तेमाल किए और एक जगह इन्ना का इस्तेमाल किए। अब जुमले के अंदर डबल बूस्टर यानी कि दोनों को इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा ताकीद पैदा करना है। फिर उसके लिए इन्ना जैदन ला सालिहुन सालिहुन इन्ना जैदन ला सालिहुन जैदन ला सालिहुन सालिहुन अमल नहीं करता ला लसालिहुन। ये चार जुमले हैं, पांचवा जिसमें से पहला जो सादा जुमला है, सही उसके बाद है फिर लाम जबर ला के साथ ताकीद पैदा किए, फिर उसके बाद इन्ना के साथ ताकीद पैदा किए, फिर उसके बाद इन्ना और लाम जबर ला दोनों भी ताकीद पैदा होगी। अब पांचवा जो जुमला वो क्या है, कौन सा है? वल्लाही इन्ना जैदन ला सालिहुन वल्लाही इन्ना जैदन सालिहुन लसालिहुन। तो यहाँ पे आ गया वल्लाही 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 इन्ना इन्ना जैदन ला सालिहुन जैदन जैदन ला सालिहुन लसालिहुन लसालिहुन। ये 5 जुमले आ गए। सबसे पहला है जैदुन सालिहुन। दिख रहा नहीं क्या? जैद है नेक पहला है जैदुन सालिहुन, जैद है नेक। ल जैदुन सालिहुन, बेशक जैद है नेक, यकीनन जैद है नेक। इन्ना जैदन सालिहुन, फिर बेशक यकीनन जैद है नेक। इन्ना जैदन ल सालिहुन, बेशक यकीनन जैद है जैद है बहुत नेक। जी सर हो गया। उसके बाद वल्लाही इन्ना जैदन ला सालिहुन, अल्लाह की कसम यकीनन बेशक यकीनन जैद है बहुत नेक नेक। तो ये है जुमले के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए। तो 2 हरूफ का इस्तेमाल हुआ, इन्ना और लाम जबर ला। इसके अंदर एक और जुमला आप ऐड कर लीजिए आज के लिए, शॉर्ट में एक और जुमला इसके अंदर ऐड कर लीजिए। हमने यहाँ पे बताए थे जी सर, ये 5वां सेंटेंस में जो है जैदन, इसमें अलिफ नहीं होगा? भूल रहता जी, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, लिखना भूल गए थे। जैदन ला सालिहुन, ठीक है। तो ये जो जुमले है इसके अंदर तर्जुमा अगर आप गौर करेंगे, जैद है नेक, यकीनन जैद है नेक, बेशक जैद है नेक, यकीनन जैद है नेक, अल्लाह की कसम जैद है नेक, बहुत नेक बहुत नेक। ये हमने इसका अंदर तर्जुमा किए। अब एक और जुमला ताकीद के लिए इसके अंदर, और आप लोग नोट कर लीजिए खाली, सर आपको उसके बाद में डिटेल उसके बारे में पढ़ाएंगे। ये है, हमने बताया कि जैद है नेक, लेकिन खाली जैद ही नेक है, बाकी कोई भी नेक नहीं है। ये भी ताकीद वाला जुमला है।
एक्सेप्शन, अच्छा बताओ। जी जी सर। Exclusive. एक्सक्लूसिव, हाँ राइट। कुछ भी नहीं करना है उसके लिए। हमारे पास दो जुज है। पहला जैदुन मुब्तदा है, खबर सालिहुन खबर 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 है। मुब्तदा मारिफा है क्योंकि रखे हुआ नाम है। खबर नकीरा है, तनवीन के साथ है। और नकीरा का पीछा जब मारिफा करता तो जुमला इस्मिया तैयार होता। ये तो अब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गया। यहां पे मायने है जैद है नेक, हमको बताना है जैद ही है नेक, जैदी है नेक। तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करना है। ये जो सालिहुन नकीरा है इसको क्या करना है, अस-सालिहु करना है, मारिफा। अच्छा अच्छा, नकीरा से मारिफा करना है बस। अब क्या हो गया, जैदुन अस-सालिहु, राइट। और बीच में ये जैदुन के साथ एक जमीर लगाने का है, प्रोनाउन, मुनफसिल जमायर, डिटैच प्रोनाउन। हाँ सर। जैदुन हुवा सालिहु, यानी कि जैदी है नेक। गुड। क्या है, जैदुन हुआ सालिहुन, जैदुन हुआ हुवा सालिहु, जैदी है नेक, जैद ही है नेक। जी, वही है ना। और हमारी दक्कनी जुबान में तो इसको समझना बहुत आसान है। खाली जहां पे भी प्रोनाउन के साथ च का साउंड आ रहा तो समझना वो उसके वास्ते च खास। मैं बड़ा हूं, मैच बड़ा हूं, तू बड़ा है, तुझ बड़ा है, उन्हें बड़ा है, उन्हें बड़ा है। तो उन्हें बड़ा है में कोई और भी बड़ा हो सकता। उन्हें चा का जो साउंड लग गया, उन्हें बड़ा है तो उन्हें बड़ा है, बाकी कोई भी बड़ा नहीं है। तो वैसा ही चाहिए उसको ग्रामर में, उसको लिखने का तरीका है मुब्तदा के बीच में, मुब्तदा और खबर के दरमियान में एक डिटैच प्रोनाउन लगाना है। जैदुन हुवा सालिहु। अब इसके साथ क्या क्या आप लगा सकते लगा दो, सिर्फ यहां पे नहीं लगेगा लाम जबर ला। इन्ना जैदन हुवा सालिहु आ गया। उसके बाद वल्लाही इन्ना जैदन इन्ना जैदन हुवा सालिहु। क्या मायने हो गए, इन्ना जैदन हुवा सालिहु, बेशक जैदी है नेक। वल्लाही इन्ना जैदन हुवा सालिहु, अल्लाह की कसम बेशक जैदी है नेक, बेशक जैद ही है नेक, जैद ही है नेक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। सर ये कुरान में यूज हुआ सर, बहुत इस्तेमाल हुआ, बहुत इस्तेमाल हुआ। अभी हम उसी की तरफ जा रहे। अब एक और जुमला हम लेके फिर हम वो हमारी जो जुमले अल्फाज लिखे हुए हैं, आयत लिखी हुई, उसकी तरफ हम चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, जी। ये जो हुआ हमने ऐड किया अभी, तो उसका वर्ड टू वर्ड जब हम एक्चुअली ट्रांसलेशन करेंगे तो वही नहीं करेंगे, सिर्फ ही करेंगे। वही है, जैद वही है नेक। ओके जी। इसका फसी जुबान में वो तर्जुमा होगा कि जैद वही है नेक, वही है नेक। जी सही है वो आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है, अल्लाहु अलीमुन, अल्लाहु अलीमुन। क्या मायने हैं, अल्लाह सारा इल्म रखता है, जानता है। अल्लाह है बहुत जानने वाला, अल्लाह है बहुत इल्म रखने वाला। हाँ, ये जुमले में अल्लाहु अलीमुन। अब ये जुमले में बनाना है हमको, अल्लाह है जानने वाला, क्या चेंज लाना है, इन्नल्लाह हुवा अलीमुन। हाँ, हुवल अलीमु, इसको नकीरा से
मारिफा में कन्वर्ट करना पड़ता। इन्नल्लाहा हुवल अलीम। पहले खाली अल्लाह है जानने वाला, अल्लाहु हुआ हुआ हुवल हुआ हुआ अलीम अल अलीमु। अल अलीम, हाँ राइट, हुवल अलीम। अलीम। तो अब पूरा हो जाएगा अल्लाहु हुवल अलीमु, मायने क्या है? अल्लाह ही है सब कुछ जानने वाला, बहुत जानने वाला। अल्लाह है बहुत बहुत जानने वाला, सब कुछ जानने वाला भी हम बोल सकते हैं, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अब इसको क्या करना है? ताकीद पैदा करना है। क्या करेंगे? इन्नल्लाहा इन्नल्लाह। इन्ना आते ही अल्लाहु मुब्तदा कौन सी हालत में? नसब हालत में चले। इन्नल्लाह हुवल अलीमु। हाँ, अब क्या हो गया? बेशक अल्लाह ही है सबसे जानने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला। राइट? यस। अब ये हो गया इन्नल्लाह हुवल अलीमु, अल्लाह है सबसे ज्यादा जानने वाला, बेशक अल्लाह ही है सबसे ज्यादा जानने वाला। अब ये अल्लाह ताला को हम मुखातिब होके बोलना है। क्या करना है? मुखातिब होके अल्लाह ताला को हम डायरेक्ट बात करना है अभी, तो उसके लिए नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता। और प्रोनाउन हाजिर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता? इन्नका इन्नका अंता। अच्छा, अंतल अंता अलीमुन, यहाँ पे आएगा अंता अलीमुन। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आएगा अंतल अलीमु। अंतल अलीमु, तू ही है सबसे ज्यादा जानने वाला। अब अल्लाह ताला को बता रहे, और अल्लाह ताला को ताकीदी जुमले के साथ हमको बताना है कि बेशक तू है सबसे ज्यादा जानने वाला। तो इन्ना लगाना पड़ता। इन्ना। अब अंत की जगह क्या हो जाएगा? इन्ना आते ही इन्नका। इन्नका। अरे क्या बात है यार। फिर अंतल अलीम। अंतल अलीम। अलीमु, बेशक यकीनन तू ही है सबसे ज्यादा जानने वाला। तू ही है। अरे बनाने को दो इनका ऑफर। हाँ, अब आप लोग बनाएंगे। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह है माफ करने वाला। अब ये जुमले को आपको बनाना है, बनाइए। अल्लाहु गफूरुन। पहले हमको ये बनाना है कि अल्लाह ही है माफ करने वाला। सही है। अल्लाह है माफ करने वाला। अल्लाहु हुवल गफूरु, अल्लाहु हुवल गफूरु। गफूरु आ गया। अब अल्लाह ताला को आप खुद बताइए कि अल्लाह तू है माफ करने वाला। अंतल गफूरु। इन्नल्लाह हुवल गफूरु। चलो इन्ना लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हमको बताना है अल्लाह तू है गफूर रहीम, तू है रहम, तू है माफ करने वाला। अंतल गफूरु। इन्नका इन्नका अंतल गफूरु। अंतल गफूरु। इन्नका अंतल गफूरु। अंतल गफूरु। गफूरु क्या मायने है? बेशक तू है सब जानने वाला, माफ करने वाला। माफ करने वाला। बात समझ में आ गई? तू है, इसको मुख्तस करने का है, तो उसके लिए क्या आ जाता? बीच में एक जमीर लगा देना पड़ता, बीच में एक प्रोनाउन लगाना पड़ता।
اگر ہم کسی کو حاضر میں بات کر رہے تو انتا انتی انتما جو بھی ہے وہ آ جائیں گا. غائب میں ہے تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن آئیں گا. اور میرے اپنے بارے میں بتانا ہے تو انا آئیں گا. اور ہم سب کے بارے میں بتانا ہے تو نحنو آئیں گا. کوئی بھی ایک پروناؤن جس کے بارے میں بتایا جا رہا اس کا پروناؤن ہم کو لگا دینا ہے. غائب ہے تو غائب کا پروناؤن، حاضر ہے تو حاضر کا، متکلم ہے تو متکلم کا. یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا. ابھی ہم یہ دیکھ لیا، اب ہم چلیں گے ہماری وہاں پہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ پہلی لائن سے پہلے دوسری لائن کا ترجمہ اب آپ لوگ کریے. بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. اور حکمت والا. آپ کی ذات ہاں. پاک ہے. اور بے بہت شک بے شک تو ہی ہے تو ہی ہے سب جاننے والا، حکمت والا، اور بڑی بہت حکمت والا. اور بہت حکمت والا، ہاں، بڑی بہت حکمت والا. جی سر. اللہ تعالیٰ کو بول رہے، مخاطب ہو گئے، جتنا بڑا چڑھا کے بول سکتے بولو. مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. صحیح ہے. پوچھئے. یہاں پہ وہی تھا اللہ علیم، پھر اس کے بعد آیا انت علیم، پھر اس کے بعد آیا انت العلیم، پھر اس کے بعد آیا انکا انت العلیم. تو ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا. تو یہ اس کا ہو گیا ترجمہ. اب ہم پہلی لائن کی طرف چلیں گے. سبحانہ، ہم شروعات سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. پاک ہے تو. سبحانہ کا پاک ہے، ہے تیری ذات. پاک ہے تو، پاک ہے تو. کہا گیا تو. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے، پاک ہے تو. لا علم، بے اب شک یہ جو لا ہے ہر لفظ کو الگ کر دیا. سبحانہ کا الگ ہو گیا لا. لا، یہ لا جو ہے یہ لام الف زبر لا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے جو پڑھے وہ لام زبر لا ہے. اچھا. یہ ہے لام الف زبر لا. نہیں یہ کہتے. لا میں نہیں ہے. ہاں، تو اب یہ جو ہے ایک حرف ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے حرف جب بھی آتا تو یہ سب سے پہلے دیکھنا عامل ہے کہ غیر عامل ہے. عامل ہے سر. اب یہ عامل ہے کہ غیر عامل ہے، اس کو دیکھنے کے واسطے اس کے بعد دیکھنا پڑتا کیا ہے. وہ جر نہیں آیا، خالی نصب نہیں. زبر آیا، زبر. یہاں پہ دیکھو علم. زبر آیا، نصب آیا نا سر، نصب. نصب. ہاں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ آیا یہ ہے علم. عین، لام اور میم، 3 لیٹر سے نظر آ رہے. اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اخذ کیا. تو یہ کون سا اسم ہوا؟ اخذ کیا ہوا. اخف کیا ہوا اسم ہوا. اخف کیا ہوا اسم قرآن میں 3 جگہ یعنی کہ 3 طریقے سے استعمال کیا جاتا. وہ کون سا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. پہلا مضاف، دوسرا منادا حرف ندا کے بعد آتا، اور تیسرا لا نفی جنس کے بعد آتا. تو یہ جو ہے اخف کرے والا اسم ہے اور پلس یہ حالت نصب میں ہے. تو اس کے پہلے لا الف زبر لا جو آ گیا تو یہ ہو گیا لا نفی جنس، ایبسلیوٹ نیگیشن. یعنی کہ جب یہ آتا لا نفی جنس تو اس قسم کے تمام الفاظ پوری کی پوری دنیا کی ڈکشنریز میں سے ڈیلیٹ ہو جاتے. تو یہ لا علم، علم کے معنی آپ جانتے ہیں، معلومات، علم، نالج. لا علم معلومات نہیں، کوئی نالج، قطعی نالج نہیں ہے، کوئی نالج نہیں. لنا ہمارے پاس، لنا ہمیں، ہمارے لیے ہوتا ہے اس کا لام زیر لی کے ساتھ، لیکن لنا جو ہے نا پوزیشن بتانے کے لیے بھی آتا. جیسے میرے پاس، مجھے، لی اخن واحد، مجھے ہے ایک بھائی، لی اختن واحدۃ، مجھے ایک بہن، یہ ایسا بھی آتا. تو یعنی کہ میرے پاس، مجھے،
ایسا بھی آتا. تو لنا ہے یعنی کہ ہمارے پاس. Right. لا علم لنا, کوئی علم نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. کس کو بتا رہے ہم؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو بتا. سبحانک لا علم لنا, پاک ہے تو اور کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس, ذرہ بھی قطن بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, نالج نہیں ہے. الا, یہ حرف استثناء, ایکسیپشن, سوائے, سوائے, ما علمتنا, سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہم سب کو. ما موصولہ. یہ علمتا دیکھو, علمتا, یہ کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے, کون بتائیں گے؟ مظاہرے دی. یہ ماضی کا یہ حاضر کا صیغہ ہے سر. علم مظاہرے. ماضی. مظاہرے. ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مظاہرے. نہیں, مضارع ہم نے پڑھے نہیں ابھی تک. ماضی ہے سر, ماضی ہے. آخری میں جو نشانی ہے تا تما تم, تی تما تننا, یہ جو تا نشانی ہے یہ ماضی کی نشانی ہے, فعل ماضی کی, پاسٹ ٹینس کی نشانی ہے. جی سر. تو یہ تا ہے. انتا کا تا, علمتا, تو نے سکھایا. تو نے حاضر کا صیغہ. ہاں, نہ ہم سب کو, تو نے سکھایا ہم سب کو. یہ ما موصولہ. جو. ہاں, یہ ما علمتنا, جو تو نے سکھایا ہم کو. ہمیں. تو پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا پاک ہے تو, لا علم لنا, نہیں ہے کوئی علم ہمارے پاس, نہیں ہے کوئی معلومات ہمارے پاس, نہیں ہے کوئی نالج ہمارے پاس, سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہمیں. یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا, جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا, اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حاصل کر بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کیا بات. تو یہ وہی بتا رہے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے تو, نہیں ہے کوئی علم ہمارے پاس سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. انکا انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا. Wise and knowledgeable. ہاں, Wise. وائس, اینڈ نالج. وائز اینڈ نالجبل. یس. تو یہ ہے وہ الفاظ. اسی الفاظ سے, انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کیا نہیں, یہ آخری کے جو میننگ بولے نا, بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے کیا؟ ہاں, حکمت والا, بہت جاننے والا, بہت حکمت والا. یہ دعا ہے کیا سر؟ ہاں, یہ دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں کہے جانے والے الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے, بہت زیادہ تعریف کرنا ہے. جتنی تعریف کرے گا بندہ, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم ان الفاظ میں کر رہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تو, نہیں ہے, ہاں, نہیں ہے کوئی نالج سوائے ہمارے پاس, سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا. اور یقیناً تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا, اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی ایک دعا کرنا, اللہم انی اسألک علما نافعا. بس نفع کا علم, نفع والا علم ہم سب کو عطا فرما, دینے والا علم اللہ عطا فرما. سر ایک بار بولو نا, ریا ہم وائس ریکارڈنگ کرتے بورڈ پہ لکھو سر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. نفع والا علم. اے اللہ
میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بے شک یقیناً میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نفع بخش علم کا، نفع والے علم کا۔ جی سر، الحمدللہ۔ تو یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد، یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے، صبح میں، رات میں نیند اشار ہوئی، رات میں آنکھ کھل گئی، قرآن پڑھنے کی جستجو ہے، تڑپ ہے کہ اللہ ہم کو قرآن سکھا دے، اللہ ہم کو اس کی زبان سکھا دے، اللہ ہم کو اس کا معلم بنا دے، اللہ ہم کو اس کا طالب علم بنا دے۔ یہ تڑپ ہے ہمارے دل میں، تاکہ ہم اس حدیث کے ان الفاظ کے زمرے میں ہم شامل ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، تو وہ تڑپ، وہ جستجو کے ساتھ ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے یا رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، نمازوں میں، نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پاک ہے تو اور نہیں ہے کوئی علم، کوئی معلومات ہمارے پاس سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہم کو، انک انت العلیم الحکیم، بے شک یقیناً تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور تو ہی حکمت والا ہے۔ پھر دعا کرنا اللہ کے سامنے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ پھر وہ علم کا سمندر اللہ تعالیٰ سینوں میں کھول دیتا، خزانے غیب سے اپنے۔ بے شک بے شک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ میں آپ لوگوں سے کوئی بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا۔ جی سر۔ میں جو پڑھ رہا تھا میرے اسکولنگ کے لائف میں، 5th تک کا میں بڑا اچھا اسکالر اسٹوڈنٹ، 6th اور 7th میں میرا گراف نیچے آ گیا کسی وجہ میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے والد محترم اللہ نے جنت آمین۔ یہ مجھے بٹھا کر سکھا ہے، بیٹے یہ پڑھو، اور علم کے خزانے اللہ کے پاس، سوئی کے نوک کے اوپر کا بھی اتنا جتنا حصہ ہے اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے، تیرے برابر میں کوئی نہیں رہتا۔ میں یہاں کھڑے رہا اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ لکھیے، اس کو ہندی میں لکھیے، اردو میں لکھیے، رومن میں لکھیے، گھر میں پیسٹ کیجیے اور اپنی اولاد کو یہ سکھائیے۔ انشاءاللہ سر۔ تو نفع بخش علم کیا ہے ذرا بتاؤ۔ وہ علم جس پر عمل کیا جائے، جو دوسروں کو یہ جس سے قرآن فائدہ کا ہے، علم سر، یہ قرآن کا علم۔ قرآن و نہیں، سنت کا علم۔ نفع بخش علم وہ ہے کہ جو علم کا استعمال کر کے آپ کی آخرت اچھا ہو۔ کیا ہو؟ آپ کی آخرت اچھا ہو، آخرت اس کی آخرت اچھی ہو، تب آگے بات تمام کو بڑے بریکٹ میں ڈال دی ہم نے۔ آخرت اچھے کے لیے ایمانداری، دیانتداری، انصاف، سب کچھ آ تو گیا جب سر۔ جب آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ دوسرے کی مدد کریں گے، جو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو ہم نے جو نعمتیں عطا کی ہے، آپ جب تک اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، بولے نعمتیں بولتے علم آ گیا، پیسہ آ گیا، کوالٹیز آ گئی، اسکل آ گئی، یہ جب تک آپ اپنے مسلمان مومن بھائیوں سے شیئر نہیں کریں گے ہمارے صف میں نہیں آنا۔ اسی لیے حافظ صاحب میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، یہ ریوارڈ یہاں پہ ہے میرے پاس، میرا رب دے رہا ہے مجھے۔ آگے بات سمجھ لو، چند پیسوں کے لیے نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، آگے نہیں بڑھنا تو۔ تو یہ دعائیں آپ لوگ یاد کر لیجئے اور روزانہ اس کو پڑھتے رہیے اسی انداز میں، جو گرامر ہم نے سیکھے اس کا ترجمہ بھی سیکھے، جیسا اس انداز میں اس کو پڑھیے اللہ کے سامنے کہ جیسا ہم ہماری زبان میں بولتے۔ صحیح صحیح جی سر، ایک ہماری زبان میں ہم ہمارے والد والدہ، ہمارے بڑے بھائی بڑے بہن، جن کے سامنے بھی ہم کو اگر کچھ مانگنا ہے تو دو نا، کیسا بولتے؟ عاجزی سے ایک دم، پلیز دو نا، دو نا پلیز، دو نا پلیز تو بولتے نہیں، ایسا منہ بناتے کہ انہوں پلیز اس کے اندر ہی چاہ جاتا۔ تو اس سے بھی زیادہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے ہم کو مانگنا۔ ایک بار پوری امیجن کرو مچی
3 साल का बाबा देवना हाँ। बाबा देवना ऐसा प्लीज अंदाज, ये अंदाज में अल्लाह ताला से मांगना है। बाबा देवना प्लीज। जो 7 स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता तो लोग मुझे स्कॉलर ब्रिलियंट बोलते हैं, अरे मैं बोला मैं मामूली हूँ। अब समझे सही। इस दुआ का असर है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ। बिस्मिल्लाह। तो ये दुआएं हैं, अल्लाह ताला से मांगना है, टूट के मांगना है, गिड़गिड़ा के मांगना है कि अल्लाह तू है देने वाला, तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। वो हिकमत भी दे हमको समझने की, वो हिकमत भी दे हमको समझाने की, वो समझने की हिकमत दे, समझाने की हिकमत दे, अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, एक एक लफ्ज को हम महसूस कर सके हमारे सीनों में, ऐसा हमको बना दे कुरान के अल्फाज को। अल्लाह से दुआएं करते रहो, जो दुआएं, जितनी दुआएं आपको हदीसों में मिलेंगी, जितनी दुआएं आप अपनी तरफ से बना के कर सकते हैं, आप उतने बना के करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह सीखे, अपनी तरफ से दुआएं बना के सीखो। अल्लाहुम्मा जअलनी मुअल्लिमल कुरान, अल्लाहुम्मा जअलनी मुअल्लिमल कुरान, अल्लाहुम्मा अल्लिमनी उलूमल कुरान, अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन व अल्लिमनी अत्ताविल। जैसी दुआ आप मांग सकते हैं अल्लाह ताला से, टूट के मांगो, कुड़कुड़ करके मांगो, आमीन आमीन। क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो हम सबको ये इल्म देने वाला है। बेशक बेशक। बाकी हम कितना भी अगर हमारा टाइम डाल दे, कितना भी कुछ भी कर ले, तो ये कोई हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय उसके जो अगर अल्लाह ताला फैसला कर दे कि ये इसको सिखाना है, तो फिर अल्लाह ताला सिखा दे। तो अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला हम सब के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। और ये जो क्लास चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सर की कोशिशें, सर की मेहनतें, सर की जुस्तजू है, सर की तड़प है, जो ये क्लास आज यहाँ तक पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। और इस क्लास को चलाने के लिए जितने अहबाब जो भी इसके बारे में फिक्रमंद है, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन सबको बेहतरीन रोजी रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, हाफिज साहब बोल के क्या वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।